Good morning, my dear lovely kids. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. So, welcome to our today's session. So, students, today is 18th of November. So, we will write it down date over here, 18 November 21. And today's day is Thursday. Okay, today's topic. In our previous class, we revised chapter number 9, a visit to the fair. From today, we will proceed further and we will start our new chapter, chapter number 10, Birbal's Khichdi. Birbal's Khichdi. It is a story. Today we will cover explanation part of the chapter, difficult words and word meaning. You have to write it down, difficult words and word meaning in your notebook. Okay children, let's start. So students, let's start lesson number 10, Birbal's Khichdi. Lesson number 10, Birbal's Khichdi. B-I-R-B-A-L''S. Birbals. B-I-R-B. B-A-L-S. Bulls. Birbals. K-H-I. C-H-D-I-D. Khichdi. Okay. First, take out this page. Ponder. Name these food items. Over here, various food items are given. We have to label it. We have to recognize the picture and label it. Okay, let's start. Which picture is this? Yes, this is your favorite dosa. D-O-S-A, dosa. It's a typical South Indian dish. Dosa, idli, upma, these are the famous South Indian dishes. You must be like it. So this is a dosa. Write it down, D-O-S-A, dosa. Next famous South Indian idli. So we will write it down, I-D-L-I, idli, dosa and idli. Next is, which picture is this? Modak. Modak. D-A-K. मोदक. मोदक हम कब बनाते हैं? गणेश चतुर्थी में हम लोग मोदक बनाते हैं ना, that is मोदक. Okay, which picture is this? This is roti. R-O-T-I, roti. This is bread. B-R-E-A-D, bread. This is rice. R-I-C-E, rice. Which picture is this? This is soup. S-O-U-P, soup. You must drink this soup. Vegetable soup is very healthy. This is noodles. Noodles. And O-D-L-E-S. Noodles. Dosa, modak, bread, soup. Idli, roti, rice and noodles. You have to write it down, these spellings in your textbook only. Below this picture, you have to write it down the spellings. Okay? Complete this work. Now, next page. Take out page number 89. So, students, lesson number 10, Birbal's Khichdi. Before starting this chapter, I will tell you the short summary of this chapter.
Basically, this is a story about a king Akbar and his minister Birbal. So, Akbar and Birbal were made Akbar realize his mistake. Akbar asked Birbal whether a person who would do anything for reward, and Birbal got him a poor man who agreed to this. Okay, so let's see what Akbar told to the poor man and what Birbal do to realize Akbar his mistake. Take out page number 89. It was was. It was winter. It was winter. सर्दियों का मौसम था. The water in the ponds and lakes was very very cold. Okay. The water in the pond and the lake was very cold. ठंड का मौसम था और उस ठंड के मौसम में पॉन्ड्स का और लेक्स का पानी जो था बहुत ही ठंडा था. At the court, COURT, court. What is the meaning of court? Look at this. Court means a place in a palace where a king and queen meets minister and common man. कोर्ट कौन सी जगह होती है? कोर्ट वह जगह थी जहाँ पे किंग मतलब राजा और क्वीन मतलब रानी अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्रियों से और कॉमन मैन से, वहाँ की जनता से मिलते थे. तो एट द कोर्ट एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल. कोर्ट में अकबर ने बीरबल से कहा, टेल मी बीरबल, विल अ मैन डू एनीथिंग फॉर मनी? क्या बोला अकबर ने कि बीरबल बताओ, क्या एक इंसान पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है? बीरबल रिप्लाइड यस. बीरबल रिप्लाइड यस. बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, वो कुछ भी कर सकता है. द एम्परर ऑर्डर्ड, ब्रिंग मी अ मैन हु विल डू एनीथिंग फॉर मनी. राजा ने कहा, मेरे पास एक ऐसा आदमी लेके आओ जो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है. ओके. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विथ अ पुअर मैन. नेक्स्ट डे बीरबल कोर्ट में हाजिर हुआ अलॉन्ग विथ अ पुअर मैन. पुअर मतलब गरीब. एक गरीब आदमी के साथ कोर्ट में आया. बीरबल टोल्ड द एम्परर. एम्परर मीन्स किंग. ओके. बीरबल टोल्ड द एम्परर. बीरबल ने एम्परर मतलब राजा से कहा, दिस मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी. राजा से क्या कहा कि यह आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है. लुक एट दिस पिक्चर. आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ ओल्ड पुअर मैन, एम्परर अकबर एंड ही इज बीरबल. ही कम टू द कोर्ट एंड ये गरीब आदमी राजा के सामने आया है. बीरबल उसे लेके आया है और बीरबल कहता है राजा से कि ये गरीब आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है. द एम्परर ऑर्डर्ड द मैन टू स्टैंड इनसाइड अ कोल्ड पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी क्लोथ्स इफ ही नीडेड मनी. एम्परर ने बीरबल से क्या कहा कि एम्परर ने ये ऑर्डर दिया कि दिस मैन टू स्टैंड इनसाइड द कोल्ड पॉन्ड, कि इस पुअर मैन को एक ठंडे पानी के पॉन्ड में सारी रात खड़े रहना पड़ेगा
विदाउट एनी क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, अगर वो पैसे चाहता है या उसे पैसे चाहिए तो। ओके, दिस इज पेज नंबर 89. नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर 90. The poor man had to do as the emperor asked. वह पुअर मैन ने जैसा एम्परर ने कहा था वैसा ही किया. He stood in the pond all night long, shivering. वह पूरी रात, शिवरिंग मतलब शिविर करता हुआ, मतलब कांपता हुआ, पूरी रात उस पॉन्ड में खड़ा रहा. He returned to the court the next day to take his reward from the emperor. वो सारी रात उस नदी में खड़ा रहा ठंडे पानी में, और नेक्स्ट डे वो अपना रिवॉर्ड मतलब इनाम पाने के लिए एम्परर मतलब राजा के पास गया. The emperor asked, "Tell me, O man, how could you bear the cold all through the night?" जब वो पुअर आदमी, गरीब आदमी राजा के पास गया तो राजा ने उसे पूछा, "Tell me, O man, how could you bear the cold all through the night?" तुमने इतनी ठंड में कैसे सहन किया? इतनी ठंडी रात में नदी में खड़े रहना तुमने कैसे सहन किया? The poor man replied. उस पुअर गरीब आदमी ने जवाब दिया, I could see a dim glowing light far away. उस आदमी ने क्या कहा कि मैंने एक डिम, जो धीरे से चल रही थी, ग्लोइंग लाइट, दूर एक दिया जल रहा था, उसको मैं पूरी रात देख रहा था. एंड आई फेल्ट वार्म विद दैट रे ऑफ लाइट. और उस दिए से जो रोशनी मिल रही थी, जो गर्मी निकल रही थी, मैं ऐसा सोच रहा था कि वो मुझे गर्मी प्रदान कर रही है. एम्परर अकबर did not pay the man his reward, saying that he had got warmth from the light and so that was cheating. तो राजा ने क्या कहा? राजा ने उसे रिवॉर्ड नहीं दिया. राजा ने उसे अपना रिवॉर्ड नहीं दिया और क्या कहा कि इस पुअर आदमी ने चीटिंग करी है. कौन सी चीटिंग करी है? He had got warmth from the light. उसने उस दिए की गर्मी से पूरी रात पॉन्ड में निकाली है, जिससे कि ये एक चीटिंग है और उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा. The poor man could not say anything to the emperor and so returned home sadly. उस गरीब आदमी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा और वह शांति से अपने घर लौट गया. बीरबल tried to make the emperor understand, but the emperor did not listen to him. जब बीरबल ने राजा को समझाने की कोशिश करी कि इतनी दूर से दिए की रोशनी उस पुअर आदमी तक कैसे पहुंच सकती है, पर राजा ने बीरबल की एक भी बात नहीं मानी. द एम्परर डिड नॉट लिसन टू हिम. उसने बीरबल की एक भी बात नहीं मानी. देन बीरबल स्टॉप्ड कमिंग टू द कोर्ट फॉर सम डेज. उसके बाद बीरबल ने कोर्ट में थोड़े दिन के लिए आना बंद कर दिया. ही सेंट अ मैसेंजर टू द एम्परर सेइंग दैट he would come to the court only after cooking his खिचड़ी. और उसने एक संदेशा भेजा को एम्परर को कि अब वो कोर्ट तभी वापस आएगा जब उसकी क्या बन जाएगी? खिचड़ी पक जाएगी. As बीरबल did not turn up even after 5 days. 5 दिन हो गए
और 5 दिन के बाद भी बीरबल जो है वो कोर्ट में वापस नहीं आया। द एम्परर हिमसेल्फ वेंट टू बीरबल्स हाउस टू सी वॉट ही वॉज डूइंग। जब वो 5 दिन तक नहीं आया तो राजा खुद बीरबल के घर गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल हैड लिट अ फायर एंड केप्ट द पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी हाई अबव। ओके, क्या किया था बीरबल ने? बीरबल ने क्या किया था? उसने एक मटकी के अंदर खिचड़ी डाली और वो खिचड़ी के पॉट को, कच्ची खिचड़ी, अनकुक्ड मतलब कच्ची खिचड़ी, जो उसने आग से बहुत ऊपर लगा रखी थी। आप पेज नंबर 91 पे ये पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पॉट में खिचड़ी है और कितना नीचे उसका फायर जल रहा है। ही इज़ अकबर एंड ही इज़ बीरबल। उसने खिचड़ी कहाँ टंगाई थी? बहुत ऊपर टंगाई थी और आग बहुत नीचे लगाई थी। ठीक है। Emperor Akbar asked him, "How will the khichdi get cooked with the fire so far away?" अकबर ने बीरबल से कहा कि तुमने ये खिचड़ी टंगाई तो कितनी दूर है आग से, ये आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, "It was possible for a man to get warmth from the light that was distance away. In the same way, this khichdi will get cooked too." बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सब पॉसिबल है ठीक वैसे ही जैसे कि एक दूर पड़े दिए से एक आदमी को अगर गर्मी मिल सकती है, उसी तरह से ये खिचड़ी जिसको मैंने इतना ऊपर लटकाया है वो भी कुक हो सकती है। एम्परर अकबर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। ही कॉल्ड द पुअर मैन एंड रिवॉर्डेड हिम। अकबर को अपनी गलती का पता चल गया। उसको पता चल गया कि उसने उस गरीब के साथ, उस पुअर मैन के साथ नाइंसाफ़ी करी है और उसने उस पुअर मैन को बुलाया और उसे रिवॉर्ड दिया। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट इट डाउन 3 times these words in your notebook. COURT, coat. COURT, coat. EMPEROR, EMPEROR, emperor. Emperor means king. Emperor means हिंदी में राजा। POND, pond. CLOTHES, clothes. Clothes मतलब कपड़े। SHIVERING, शिव। ERING, ing, शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कांपना। ठंड हमें जब बहुत सारी लगती है तो हमारी कपकपी छूटती है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिवरिंग। नेक्स्ट इज REWARD, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इनाम देना। इनाम देना उसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? रिवॉर्ड। DIM, डिम। डिम मतलब बहुत हल्की सी, थोड़ी सी। GLOWING, ग्लोइंग। GLOW, ग्लो। ING, ing, glowing. Okay, next is WAR, WARMTH, warmth। warmth मतलब गर्माहट। UNDER, under। UNDER, under। STAND, stand, understand।
अंडरस्टैंड मतलब समझना। MESSENGER मैसेंजर। मैसेंजर मैसेंजर मतलब दूत बोल सकते हैं, या जिसके थ्रू हम मैसेज पहुंचवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैसेंजर। KHICHDI खिचड़ी। खिचड़ी। UNCOOK कुक। अनकुक मतलब बिना पकी हुई, कच्ची। अनकुक्ड मतलब कच्ची। POSSIBLE पॉसिबल। POSSIBLE पॉसिबल। DISTANCE डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। DISTANCE डिस्टेंस मतलब दूरी। और MISTAKE मिस्टेक। MISTAKE टेक मिस्टेक मतलब गलती। You have to write it down these spellings in your notebook. Okay, children? Next is word meaning. These are the word meanings of this chapter. You have to write it down two times in your notebook. First is COURT, court. What do you mean by the court? A place in a palace. Palace मतलब महल. A place in a palace where a king or queen. King मतलब राजा, queen मतलब रानी, means ministers and common people. महल की ऐसी जगह पर जहां पर राजा और रानी अपने मंत्रियों से, मिनिस्टर मतलब मंत्री, और कॉमन पीपल मतलब वहां की आम जनता से मिलते थे। उसे क्या बोलते हैं? कोर्ट। नेक्स्ट इज SHIV शिव। ERING ing shivering। shivering shivering what is the meaning of shivering? Shivering means shaking with cold। जैसा कि टीचर ने आपको बताया, shaking with cold ठंड के मारे ठिठुरना या कांपना, उसे हम क्या बोलते हैं? shivering। नेक्स्ट इज REWARD रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इनाम। वैसे a valuable thing gifted to somebody, ऐसी valuable thing जो किसी को उपहार स्वरूप दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड। नेक्स्ट इज मैसेंजर। मैसेंजर मैसेंजर मतलब a person who carries message। a person who carries message ऐसा व्यक्ति जिसको हम कोई मैसेज दें और वो दूसरे व्यक्ति तक जाके पहुंचाए, उसे हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर। और लास्ट इज टर्न अप। टर्न अप मीन्स बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट। ओके, राइट डाउन these word meanings in your notebook. So children, we end up our today's session over here. I explain you chapter number 10, Birbal's Khichdi. I hope you understand it. Write it down. There are difficult words and word meaning in your notebook. And if you feel any kind of problem, just contact me. Till then, thank you and have a nice day. Bye bye.